we studied what are the geometrical properties of open channel flow. So in this module we will study important which are very important in discharge and velocity calculation of open channel flow. In this video lecture, our objective will be to understand and analyze what is Chagy's formula first. The second will be to understand and analyze what is Manning's formula, and the third will be most efficient channel section. Now you see, these three will be our objective. Most efficient channel section means how you are saying one channel to be efficient, most efficient, and you are not saying another channel to be most efficient. What are the basic geometrical properties and what are the basic geometrical proportion that be present in a channel to become most efficient. We will see parameters one by one. So after completion of our video class, we will have analyzed and we will develop a basic concept of all these three parts. Now we will start our video lecture today with our first topic, that is Chagy's formula. Chagy's formula. These formulas, Chagy's formula, Manning's formula, these formulas are empirical formulas and had been given by scientists in which they did a lot of calculation, and after those calculation they bought an equation which was fitting all those calculation. Thereafter they give the final. That's why they are known as empirical formulas. Those formulas are known as empirical formulas. Understand? Sorry. Now we will understand what is our first formula. पहला formula है Chagy's formula. Chagy's formula. Actually, this formula is given by one of a prominent scientist, Chagy. He was a French scientist who has given this formula. ये formula कहता है कि for a uniform flow, मतलब किसी open channel में अगर कोई uniform flow हो रहा है तो उस flow में velocity जो होगी c into square root of r s naught. मतलब कि जो यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी होगी उसकी फॉर्मूला ये होगी. व्हाट इज सी? सी इज ए कांस्टेंट. सी क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं चेजीज कोफिशिएंट और चेजीज कांस्टेंट. व्हाट इज आर? आर इज हाइड्रोलिक रेडियस. हाइड्रोलिक रेडियस वी हैव डिफाइंड इन फर्स्ट मॉड्यूल. हाइड्रोलिक रेडियस इज वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. व्हाट इज बेड स्लोप? एस इज बेड स्लोप. Bed slope means slope given in longitudinal direction along which, due to the force of gravity, the liquid is flowing. Means a channel will be for the channel condition, the channel will have always downward slope. The slope means the tangent of angle it is getting with the horizontal surface is known as slope. Bed slope is known as bed slope. You denote it by S or you denote it by S naught, whatever. So this was the basic formula which was given by Sir Chagy, popularly known as Chagy's formula. Okay. Now this is Chagy's constant is not so simple. Means calculate the velocity value unless and until you know the value of c. So this c depends upon many factors, and this c even comes from another formula which is known as Bayesian's formula. Bayesian's formula and Kutter formula we will see in our next slide. मतलब C का वैल्यू भी किसी और फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, तो ये बहुत आसानी से C भी नहीं निकलता है. तो इस तरह से नहीं कि C की वैल्यू जो है कोई 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके भी रहती है. C भी डिपेंड करता है. तो वी विल नेक्स्ट स्लाइड की C की वैल्यू कैसे निकलती है बेजियन फार्मूलाज के.
तो आपको ये चेंजेस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना है, v इक्वल टू सी स्क्वायर रूट आर एस नॉट. You have to remember this much only. Now we will move forward to our next slide, in which we will see कि ये चेजिस फॉर्मूला आया कैसे था. ये जो चेजिस फॉर्मूला का जो कोफिशिएंट था सी, ये कहाँ से आया था. तो चेजिस इक्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन चेजिस का जो कैलकुलेशन है, चेजिस कोफिशिएंट का कैलकुलेशन वो उतना आसान नहीं है. तो बेजिंस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग चेजिस का सी का वैल्यू निकालते हैं. जो बेजिंस फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू 157.6 अपॉन 181 प्लस K अपॉन रूट आर, वेयर K डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज रफनेस एंड द टाइप ऑफ द सॉइल, या जहाँ से वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये जो बेजिंस कोफिशिएंट है K, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. R आपका हाइड्रोलिक रेडियस है, मतलब A बाय P. ठीक है, यू नो दिस, R इज वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. तो ये जो आपके K के अलग अलग वैल्यूज हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका अलग अलग कौन सा चैनल है जहाँ से फ्लो हो रहा है. तो बेसिकली ये रफनेस पैरामीटर है. तो फ्रॉम दीज वैल्यूज यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. आपको ये K की वैल्यू पता चल जाएगी, R की वैल्यू आपके चैनल को आप पता कर लेंगे, तो C की वैल्यू आप पता कर लेंगे. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे कि अब डिस्चार्ज का इक्वेशन चेंजेस के बेसिस पे कैसा होगा. सो आपको पता है स्लाइड, आपको पता है Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया, तो ऐसा होता है. तो एज पर चेंजेस लॉ, एरिया तो हमारा A था पहले से, वेलोसिटी क्या होगा C इंटू आर एस, स्क्वायर रूट ऑफ आर एस. तो ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे बस आप वेलोसिटी में एरिया मल्टीप्लाई कर वो डिस्चार्ज, तो आपको वो डिस्चार्ज दे देगा. तो डिस्चार्ज अगर आपको मान चैनल ओपन चैनल का निकालना है और C की वैल्यू पता है, एरिया का वैल्यू पता है और आर एस का वैल्यू पता है, तो आप डिस्चार्ज निकाल देंगे. या तो अगर आपको डिस्चार्ज दिया हुआ और बाकी कर दे, तो आपको अननोन कर दे, तो आराम से इस फॉर्मूला को यूज करके आप डिस्चार्ज के फॉर्मूलाज को यूज करके बाकी अननोन पैरामीटर भी आप निकाल सकते हैं. दिस वाज द बेसिक ऑफ चेजिस इक्वेशन. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर इक्वेशन विच इज मेनिंग्स इक्वेशन. चेजी की तरह मेनिंग भी एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो वेलोसिटी और ओपन चैनल के हाइड्रोलिक और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करता है. वी विल सी इन आवर कमिंग स्लाइड. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर आवर सिलेबस करिकुलम, इज Manning's formula. Formula was given by Sir Manning's and it was given in this year 1895. This formula was also applicable for the uniform flow. Now you observe this, uniform flow was also there in the Chayes formula. Uniform flow means the flow properties are not changing with respect to space. मतलब at x equal to 1 it has the same flow properties, at x equal to 2 it has same flow properties, at x equal to 3 it has same flow properties. Now what was the basic equation? The basic equation which was given by Manning's was v, velocity is equal to 1 by n r2 by 3 into root s naught या s, where n is a coefficient which is known as Manning's coefficient. जैसे c था Chayes equation में n Manning coefficient है, s is weight slope, you understood weight slope, you understood this is the weight slope s, okay. R is hydraulic radius, weighted area upon weighted perimeter. So you have to always remember this formula. V is equal to 1 by n, 1 by n, 1 by n R 2 by 3 into root s naught. So this was the basic equation of Manning's formula. You have to remember both these formulas, Chayes as well as Manning's formula. Now we will move forward to next slide, in which अब देयर बिटवीन रिलेशन बिटवीन Chayes, अब देखिए कांस्टेंट, अब देखिए ये जो पहला इक्वेशन है b इक्वल टू 1 बाय n r2 बाय 3 s नॉट, दिस वाज गिवन बाय Manning इक्वेशन, ये Manning के द्वारा दिया गया था, और b इक्वल टू c r s नॉट ये किसके द्वारा दिया गया था, ये Chayes के द्वारा दिया गया था. अब नाउ तो वेलोसिटी, अगर दोनों के वेलोसिटी को आप इक्वेट कर ले तो आपका जो कोफिशिएंट Manning's कोफिशिएंट n है
और जो चेंजेस कोफिशिएंट सी है उसमें एक रिलेशन बन के आएगा, और ये जो रिलेशन आता है वो आता है सी मतलब चेंजेस कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/6 R is hydraulic radius, Manning's coefficient and C is changes coefficient. So you have to remember this. आपको ये remember करना है क्योंकि आपके objectives एग्जाम में ये आते हैं. So this was the basic relation between the changes coefficient as well as Manning's coefficient. Now we will see the discharge equation in the case of मेनिंग्स फार्मूला. मेनिंग्स फार्मूला के बेसिस पे आपका डिस्चार्ज इक्वेशन क्या है. तो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन मेनिंग्स फार्मूला में यही था, v इक्वल टू 1/n r का पावर 2/3 इंटू एस का पावर 0.5. अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल. क्योंकि जो अब डिस्चार्ज की फार्मूला है, डिस्चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी इंटू एरिया है. वेलोसिटी आपको पता था, एरिया आपको कांस्टेंट होगी, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दिस यू विल गेट द डिस्चार्ज इक्वेशन ऑफ मैनिंग्स इक्वेशन. मैनिंग्स इक्वेशन में डिस्चार्ज को इक्वेशन निकालना है, बस वेलोसिटी में एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्चार्ज निकल जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिंग्स कोफिशिएंट. जैसे अलग अलग सरफेस के लिए आपका चेंजेस कोफिशिएंट अलग अलग हो रहा था, क्योंकि चेंजेस कोफिशिएंट खुद एक आर्क पैरामीटर पे निकलता है. या तो वहाँ आप बेजिंस फार्मूला से यूज निकालते हैं, या तो एक कुटर फार्मूला होता है वहाँ से आप निकालते हैं. तो उसी तरह से मेनिंग्स कोफिशिएंट भी आपके सारे सरफेस के लिए, चैनल सरफेस के लिए अलग अलग होते हैं. वी विल सी देयर इज अ टेबल which has been displayed. You can see for the smooth steel the value will be 0.012. For the corrugated metal it will be 0.024. corrugated means metal which has rusted, जो rusted है जिसमें थोड़ा रफ हो गया उसका सरफेस. For the concrete it is this. For the glazed brick it is 0.013. For the small rock cuts it is this. For the natural stream bed this is. So this is how varying the channel surface there will be variation in the coefficient of Manning constant. मतलब n की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे आप चैनल की सरफेस को चेंज करेंगे. तो अगर आपको नॉर्मल सी बात है, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो c की वैल्यू आराम से आपको पता है था, c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या उसका रेसिप्रोकल अगर आपको c की वैल्यू पता है तो n की वैल्यू पता आप आराम से निकाल सकते हैं. बस आपको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना पड़ेगा जो बहुत आसान है, निकल जाएगा. r इक्वल टू a/p निकाल के यू कैन पुट एंड गेट द वैल्यू. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज वेरी इजी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैनिंग्स इक्वेशन. सपोज एक ओपन चैनल दिया हुआ है, इसकी 3 है, ये बॉटम विड्थ है, ये बॉटम वाले विड्थ 3 मीटर है, यू कैन सी. और बेड स्लोप इसका 1:5000 है. मतलब बेड स्लोप ऐसे 1:5000, मतलब जो है कि ये 5000 यूनिट अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो वर्टिकली जो है 1 यूनिट गिरेगा. 1:5000 कहने का ये मतलब है. ओके, परहैप्स यू गॉट. डी मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 1.5 मीटर है. यहाँ यू कैन सी देयर इज फिगर. फाइंड द फ्लो रेट, मतलब क्या निकालना है, डिस्चार्ज आपको निकालना है. और ये मैनिंग्स इक्वेशन, यूजिंग मैनिंग इक्वेशन, और n की वैल्यू दी हुई है. n की वैल्यू मतलब मैनिंग्स कोफिशिएंट वैल्यू दी हुई है. तो बेसिकली जो मैनिंग्स सर का फॉर्मूला था वो था v इज इक्वल टू 1/n r 2/3. अब सारे पैरामीटर्स आपको पता है, n पता है, s पता है, मतलब ये तो दिया हुआ ही है बेड स्लोप. अब आपको r की वैल्यू निकाली. r क्या होता था, r इज इक्वल टू a/p. r इज इक्वल टू a/p. नाउ तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, इसका इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना पड़ेगा, और p मतलब वेटेड पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ये. नाउ यू सी हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे. आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारे क्रॉस 2 है, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है. मतलब कि ये अगर 1 मीटर ऊपर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल 2 मीटर जाएगा. तो इसका मतलब ये 1.5 मीटर अगर ऊपर गया तो ये कितना जाएगा, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर अगर ऊपर गया तो ये कितना जाएगा, 3 मीटर. तो इसका टॉप विड्थ कितना हो गया, 3 + 3 + 9. अब एरिया निकालना पड़ेगा, तो आराम से आप ट्रेपेजॉइड का एरिया जानते हैं,
पैरेलल साइड का साइम इंटू 1.5, तो एरिया निकल जाएगा ये। अब आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, मतलब ये सेक्शन और ये सेक्शन जो भींगा है, तो ये सेक्शन आप कैसे निकलेगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये आपका 3 मीटर है, ये 1.5 मीटर का होल स्क्वायर, और ये भी आपका सेम उसी तरह से यहाँ पे लगा दीजिए और ये 3 मीटर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आपका इस तरह से देखिए ये निकाला है, तो यहाँ आपका पेरीमीटर निकल गया, आर का वैल्यू निकाल, ए बाई पी कर या आर निकल गया, बाकी सारा कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज निकल के आया आपका 4.84 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ मैनिंग्स इक्वेशन, परहैप्स यू गॉट। एंड नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग देखेंगे, वो होमवर्क है। आप आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, पहले तो नोट दौरान के आप भी इसको बना के रख लेना चाहिए था आपको। आफ्टर दिस कंप्लीशन अब कमेंट में सेकंड का जो क्वेश्चन का जो आंसर है, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट। द सेकंड क्वेश्चन इज कि मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज है किसी चैनल का, ये ट्रेपीजॉइड है, ओके, और उसकी बॉटम विड्थ मान लीजिए 4 मीटर है, इसकी 4 मीटर ये बॉटम विड्थ है, और इसका स्लोप जो है 1:2 है, यू कैन सी। कैलकुलेट द डिस्चार्ज डेप्थ, अगर डिस्चार्ज डेप्थ 1.5 मीटर है तो आपको निकालना है, और बेड स्लोप 1:16 है, तो और चेजिस कोफिशिएंट C = 50 है, तो आपको डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज जो होगा चेजिस के एक फॉर्मूला में क्या होगा, C × R S0 × A, बस सारा पैरामीटर्स आपको दिया हुआ है। अब आपको R का वैल्यू निकालना है, इसका R का वैल्यू निकाल के आप डिस्चार्ज की वैल्यू निकालिए। यू पुट दिस असाइनमेंट इन योर रेगुलर hydraulics copy as well as after the completion of this lecture, इसके आंसर्स को आप नीचे कमेंट में you put answer of this assignment, of this question assignment. Now we will come to one of the most important properties of an open channel. ओपन चैनल के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं हम लोग मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल या मोस्ट इफिशिएंट चैनल। वी विल अंडरस्टैंड एंड एनालाइज व्हाट इज द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल। सी, during the design state of an open channel, the channel cross section roughness given, slope are given, मतलब कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, क्रॉस सेक्शन, रफनेस एंड बॉटम सरफेस, दीज पैरामीटर्स आर वेल नोन बिफोर, मतलब पहले ही हमें इसके पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होता है। टू डिटरमाइन कि फ्लो वेलोसिटी क्या है, डेप्थ और फ्लो रेट क्या है, ठीक है। तो द डिजाइन ऑफ द फ्लो चैनल इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द चैनल शेप एंड द बेड स्लो गिवन फ्लो, कन्वे द गिवन फ्लो विथ अ गिवन फ्लो रेट विथ अ फ्लो डेप्थ, मतलब ये डिजाइन में आपको ये रखना होगा कि चैनल का शेप कैसा हो, उसकी बेड स्लिप कितनी हो, ताकि इतना डिस्चार्ज आपको इतने डेप्थ ऑफ वाटर के साथ आपको मेंटेन करना है। नाउ फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, किसी खास एक डिस्चार्ज के लिए स्लोप एंड रफनेस द डिजाइनर्स एम्स टू ओके द क्रॉस टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज स्लोप एंड रफनेस, मतलब किसी केस में अगर कोई गिवन डिस्चार्ज, मतलब इसके डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, स्लोप कांस्टेंट हो, रफनेस कांस्टेंट हो, तो को उस समय ये डिजाइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी जो एरिया क्रॉस है जिसके थ्रू वो फ्लो कर रहा है, वो जो है वो मिनिमाइज हो जाए, और ताकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मतलब उस चैनल को बनाने में जो हमारा खर्च आएगा वो कम आएगा। Now, channel will be known as most economical channel when the cost of the construction of the channel will be minimum. Normal scale कब किसी economical कब किसी चीज को बोलते हैं, जब आपका वह सर्व कम रेट पर करे, मतलब अगर मैं 10 रुपए में वो काम कर पा रहा हूँ, वही काम अगर कोई 20 रुपए कर रहा है तो मैं मोस्ट एफिशिएंट हो गया, बिकॉज आई एम वर्किंग विथ लेस मनी, हम लेस मनी के साथ उस काम को इफिशिएंटली कर पाए। बट
बट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल डिपेंड्स ऑन एक्सकवेशन एंड द लाइनिंग। और लेकिन जो खर्च है चैनल का, वो उसके एक्सकवेशन मतलब उसकी खुदाई करने में, और उसकी चारों तरफ जो है मतलब चारों तरफ जो उसकी लाइनिंग होती है तीनों तरफ, उसमें मेन कॉस्ट जाता है। तो कॉस्ट को घटाने के लिए, टू कीप द कॉस्ट मिनिमम, द वेटेड पेरीमीटर फॉर अ गिवन डिस्चार्ज शुड बी मिनिमम। मान लीजिए आपका एक ट्रेपीजॉइडल चैनल है, तो आपका ट्रेपीजॉइडल चैनल ऐसा तो शुरू में था नहीं, आपने क्या किया, ये ग्राउंड था, ग्राउंड को आपने फिर उसमें एक्सकवेट किया, यहाँ से उतना मिट्टी निकाला, तब आपका जाके ये चैनल बना। तो आपने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक्सकवेशन किया। तो कहने का मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके एक्सकवेशन और इसके लाइनिंग पे डिपेंड करेगा। लाइनिंग मतलब कि आप अगर लाइनिंग कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ब्रिक लेइंग कर देते हैं, एसफाल्ट से कर देते हैं, बिटमिन से कर देते हैं, स्टोन्स यूज करते हैं ताकि पानी जो है मान लीजिए इस ओपन चैनल से बाहर नहीं जा पाए, या केनाल बना रहे हैं, अगर लाइनिंग करते हैं तो उसके कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कॉस्ट को कम करने के लिए आप चाहेंगे कि आपकी जो पेरीमीटर है, अब यू कैन अंडरस्टैंड, कि वो जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा आपको खर्च कम पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट को कम करने के लिए वेटेड पेरीमीटर को, जो आपका वेटेड पेरीमीटर है, उसकी वैल्यू को कम करना होगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल। यू हैव टू इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल मीन्स दैट चैनल which has less cost construction for a given discharge, मतलब किसी given discharge के लिए उसकी जो cost of construction है वो बहुत कम है। Okay, so this condition is utilized for the dimension of economical section for different form of channel। यही conditions को use करके हम जो है जो basic channels हैं उसके dimension को, मतलब basic economical section जो है उसके डायमेंशन को हम निकालते हैं। वी विल सी इन आवर कमिंग स्लाइड्स। आप जानिए कि द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल इज ऑल्सो नोन एज बेस्ट सेक्शन और मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, एज द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्लोप एंड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। कहने का मतलब होता है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को आप बेस्ट सेक्शन भी कह सकते हैं या इफिशिएंट सेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकल सेक्शन है तो वहां से जो भी डिस्चार्ज पास हो रहा है वो मैक्स ज़्यादा होगा। ओके, तो बेसिकली आप देखिए कि आप जो डिस्चार्ज को आप क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने वेलोसिटी के लिए चेजिस इक्वेशन को यूज किया। इक्वल टू क्या होगा, C इंटू आर एस नॉट। यहाँ पे आर का वैल्यू, आर को कर देते हैं, आर को एरिया बाय पेरीमीटर कर देते हैं, बाकी सारा कांस्टेंट पैरामीटर है, सिर्फ बचा क्या, 1/√p। मतलब कि अगर आपको डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना है, यहां से भी आप जानिए, अगर आपको यू वांट टू इंक्रीज द डिस्चार्ज तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से देखिए पेरीमीटर को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर को कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हेंस तो दोनों चीज आप देख लिए कि वहां पे आपका कॉस्ट में भी आपको क्या कर रहा था, पेरीमीटर को कम करना पड़ रहा था। यहाँ पे भी आप देख लिए कि डिस्चार्ज को अगर मैक्सिमाइज करना है आपको तो पेरीमीटर को कम करना पड़ेगा। हेंस द डिस्चार्ज विल बी वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम एंड द वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। इसी का लिए हम लोग इसी का इक्वेशन यूज करते हैं कि इकोनॉमिकल सेक्शन को डिफाइन करने हम लोग यूज करेंगे कि उसकी पेरीमीटर किसी भी तरह से मिनिमम हो जाए। अगर उसकी पेरीमीटर मिनिमम हो जाएगी तो फिर वो सेक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो सेक्शन जो है इकोनॉमिकल सेक्शन हमारा हो गया। तो इसमें हम लोग पहला सेक्शन देखेंगे, द फर्स्ट सेक्शन विच विल हैव इज रेक्टेंगुलर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर। थर्ड सेक्शन देखेंगे सर्कुलर। बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज देख लेंगे सर्कुलर सेक्शन में कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है एफिशिएंट सर्कुलर सेक्शन का। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन। नाउ आपको पता है कि जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो
एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है, यू नो दिस। और जो डिस्चार्ज होता है आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक रेडियस के किसी भी तरह से। चेजिस इक्वेशन में रूट आर है और मैनिंग्स इक्वेशन, चेजिस इक्वेशन में रूट आर है, मैनिंग्स इक्वेशन में आर 2/3 है, ठीक है। तो एनी हाउ इट इज इफेक्टिंग द डिस्चार्ज एंड यू नो आर इज A/P, ठीक है, R इज A/P। आपको डिस्चार्ज की वैल्यू को बढ़ाना है तो R की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और R की वैल्यू को बढ़ाना है इसका मतलब क्या है, अब कांस्टेंट आपका फिक्स्ड है, यू सी, यस, चैनल सेक्शन विद द लीस्ट वेटेड पैरामीटर। तो आपको अब इसमें Q की वैल्यू, Q की जो वैल्यू होती है वो ऑफ रूट आर इन द केस ऑफ चेजिस इक्वेशन, और Q की जो वैल्यू होती है वो होती है Q इज इक्वल टू R2/3 इन द केस ऑफ मैनिंग इक्वेशन। नाउ यू सी जो R की वैल्यू थी वो थी एरिया अपॉन पेरीमीटर, एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है। आपको बेसिकली इसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, और हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी कम करने में हमारा था जो हमको पेरीमीटर की वैल्यू को क्या करनी थी, पेरीमीटर की वैल्यू को कम करनी थी। और हम जस्ट इसके पहले आते हैं, यहाँ पे देखिए दिस, और जो डिस्चार्ज की वैल्यू को अगर हमको इंक्रीज करना था तो हमारी को क्या करना था, पेरीमीटर की वैल्यू को कम करनी थी, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो रहता है एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पी की वैल्यू को हमको कम करना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन के लिए दिस हैज गॉन वेरी हेजी, आई विल शो यू अगेन। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि आर की जो रेडियस, उसकी हाइड्रोलिक रेडियस, उसकी वैल्यू को आपको इंक्रीज करना था, और वो डिपेंड कर रहा था जो है A/P पे, ठीक है। तो एरिया जब कांस्टेंट होगा तो P की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, तभी R की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी। तो हमने दोनों तरफ से देख लिया था कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी पेरीमीटर की वैल्यू को कम करना था और मैक्सिमम डिस्चार्ज में भी पेरीमीटर की वैल्यू को कम करना था। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ P, मतलब P की जितनी वैल्यू होगी उतना इफिशिएंट चैनल सेक्शन होगा। नाउ आगे हम लोग देखेंगे, दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल है। तो मान लीजिए कि ये उसकी बॉटम विड्थ B है, यू कैन सी, और जो डेप्थ है उसकी D है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिएगा, तो एरिया उसकी क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू डी, और जो पेरीमीटर हो जाएगा वेटेड पेरीमीटर B प्लस 2D हो जाएगा, इधर भी D है इधर भी D है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे किसी B को या D को A के फॉर्म में लिख दीजिए, ताकि जो पेरीमीटर में सारा एक ही फॉर्म में आ जाए। तो मान लीजिए हमने B को A के फॉर्म में लिखा, तो यहां से कि B को क्या लिखते, A के फॉर्म में लिखते, तो B इक्वल टू A/D, और फिर उसको यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे पुट कर दीजिए B इक्वल टू A/D। तो पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाता, पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाता, 2D प्लस A/D, यहां से आ गया। अब आपको पता है कि इफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल या इकोनॉमिकल चैनल के लिए आपकी P की वैल्यू को क्या होता है, मिनिमम करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है। तो आपको पता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के लिए dP अपॉन dy, या जिसके बेसिस पे पेरीमीटर चेंज कर रहा है उसकी वैल्यू आपको जीरो करनी पड़ेगी, यू नो दिस, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आपको मिनिमम करना है तो dP अपॉन dd या dP अपॉन dy को आप जीरो कर लीजिए, d ही y है। तो जब ये करेंगे तो ये करके एक रिलेशन आ जाता है, यू कैन सी द फाइनल रिलेशन कम्स टू बी जो d इज इक्वल टू B/2, मतलब ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये आपका जो रेक्टेंगुलर चैनल है उसका आधा है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमने कहाँ से कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, हमने पेरीमीटर के वैल्यू को कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि हमने पहले ही देखा था
कि पेरीमीटर को हमको कम करना था, तभी हमारा चैनल इकोनॉमिकल था। तो dp बाई डी डी जैसे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो फॉर्म जो सॉल्यूशन निकल के आया वो आया d इक्वल टू बी बाई टू। ओके, तो हाइड्रोलिक रेडियस में इसमें जो हम r इक्वल टू ए बाई पी करते तो इसमें वैल्यू जब हम निकाले b और d में जब हमारा रिलेशन आ गया तो वैल्यू हम जो निकाले तो हाइड्रोलिक रेडियस इसमें क्या आ जाता है d बाई टू, मतलब जितना डेप्थ ऑफ फ्लो है उसका 2। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल। तो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल में अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है तो आप बोलेंगे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो y है डेप्थ ऑफ फ्लो, वो उसके बॉटम विड्थ का हाफ होगा। बस आप ये बोल दीजिएगा और उसी का प्रॉपर्टीज लेके आपको बोलिएगा हाइड्रोलिक रेडियस डेप्थ ऑफ फ्लो वो डेप्थ ऑफ फ्लो के आधा होता है, आधा होता है। दैट्स ऑल यू कैन से। So this will be most economical rectangular channel. Now we will move forward to our next economical channel, that is trapezoidal channel. Let's see what is trapezoidal channel. See, in this channel, this is the base B. ये बेस B है, ओके। इसकी डी डेप्थ है, टोटल डेप्थ इसकी डी है, ये टॉप विड्थ टी होगी। तो अब इसकी साइड स्लोप 1n है, मतलब अगर डी ऊपर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा nd, ये भी nd। तो इसकी जो टॉप विड्थ क्या हो जाएगी, टॉप विड्थ हो जाएगी b प्लस 2nd हो जाएगी, क्योंकि nd इधर से nd इधर से, ठीक है। नाउ एरिया आप लिखेंगे, एरिया फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब P प्लस बी प्लस 2nd इंटू डेप्थ। तो एरिया का फॉर्मूला ये आ जाता है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, बी का फॉर्मूला, बी को निकाल दीजिए, बी की वैल्यू। तो बी का वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला तो आया nd, इसका हम वैल्यू यूज करें। अब हमको क्या करना है, बेसिकली आपको पता है किसी भी इकोनॉमिकल चैनल में आपको क्या करना था, पेरीमीटर को मिनिमाइज करना होता है। तो यहाँ पे आप पेरीमीटर की वैल्यू लिख, पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये बेस प्लस ये जो स्लैंटेड पेरीमीटर ये वाला पार्ट है और जो स्लैंटेड एज ये वाला पार्ट है। तो इस दोनों का वैल्यू प्लस ये बेस। अब इसका कितना वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू आराम से आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये nd का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। तो मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो आ जाएगा p प्लस 2d इंटू 1 प्लस n स्क्वायर। सेम उसी तरह से इधर भी निकालते, तो वे आपको वेटेड पेरीमीटर के लिए ये वाला सेक्शन जोड़ते, ये बेस जोड़ते, फिर ये वाला सेक्शन जोड़ते, स्लैंट हाइट, तो आपका पेरीमीटर निकल गया। अब हमने क्या किया है, क्योंकि पैरामीटर b और d दोनों हैं, हमको क्या कीजिए, आप क्या कीजिए कि n, अभी इस केस में अभी n को आप कांस्टेंट मान लीजिए। n मतलब आपका ये जो साइड स्लोप था, n जो है आपका साइड स्लोप था, इसको कांस्टेंट मान लीजिए। और आप b को d के फॉर्म में लिख लीजिए, ये यहाँ से। तो आप b को क्या कीजिए, इस फॉर्म में लिख दीजिए, b इक्वल टू ए बाई डी माइनस एन डी प्लस इतना। अब आपको पता है कि फॉर इकोनॉमिकल चैनल p शुड बी मिनिमम, मतलब dp बाई डी डी इक्वल टू 0। यहाँ से आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट जब कर देते हैं तो फाइनल इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका जो निकलता है वो आता है d अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2nd अपॉन 2। मतलब d अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर क्या है, एक स्लैंट लेंथ है इसका, ठीक है। मतलब एक स्लैंट लेंथ का वैल्यू किसके बराबर होगा, b प्लस 2nd क्या था, टॉप विड्थ अपॉन 2। मतलब स्लैंट लेंथ की वैल्यू इकोनॉमिकल चैनल में, ट्रेपेजॉइडल इकोनॉमिकल चैनल में टॉप विड्थ बाय 2 के बराबर होगा। ओके, परहैप्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको यहाँ से पहला इक्वेशन यहाँ से आप निकल गया। दूसरा चीज आपको पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर करते तो क्या जोड़ते, b दोनों 2, ये दोनों 2nd, जब जोड़े तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आपको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है तो क्या कीजिएगा, r इक्वल टू ए बाई पी, ए की वैल्यू आपको पता है, पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब पुट किए तो r की वैल्यू यहाँ पे d बाई 2 आ गया। नाउ दो चीज यहाँ से आपको ये निकल गया। तो आपको इकोनॉमिकल चैनल, अगर ट्रेपेजॉइडल इकोनॉमिकल चैनल है तो आपको क्या याद रखना है कि पहला याद रखना है कि जो स्लैंट हाइट होगा उसकी, मतलब स्लैंट लेंथ होगा, उसकी वैल्यू जो होगा टॉप विड्थ बाय 2 के
टॉप विड्थ बाय 2 के बराबर होगा। और दूसरा उसकी जो हाइड्रोलिक रेडियस होगी, हाइड्रोलिक रेडियस वो क्या होगी, d बाय 2 के इक्वल होगी, d बाय 2 के इक्वल होगी। सो दीज 2 पॉइंट्स यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब इसमें एक और चीज है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए ये थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू ये कितनी होनी चाहिए। जो ये थीटा का वैल्यू निकलता है वो निकलता है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ये भी एक्चुअली उसमें जो पहले वाला पार्ट में हमने यहाँ पे इसको ट्रीट कर दिया था कि n कांस्टेंट है, और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे n को वेरिएबल मान के ट्रीट करते हैं, और n को वेरिएबल मान के उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dp अपॉन dn। तो हमारा वैल्यू कुछ आता है कि n इक्वल टू 60 डिग्री पे, n मतलब थीटा, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू पे हमारा जो है इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। जब थीटा ये 60 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। ये तो सारा एंगल जो होता है इसका ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट। चैनल, ट्रेपेजॉइडल चैनल में आपको क्या याद रखना है इकोनॉमिकल चैनल के लिए, सबसे पहले जो स्लैंट लेंथ होगा वो ये जो टॉप विड्थ है इसका हाफ होगा, पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा आप रखना है कि जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो मान ली वो डेप्थ का 2 से अगर ये y है तो ये y बाई 2 होगा। तीसरा आपको क्या याद रखना है, जो ये थीटा है, जो ये स्लाइड एंगल थीटा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये थीटा है वो क्या है, 60 डिग्री। थीटा क्या है, 60 डिग्री। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आप इसको यू कैन पेन इट डाउन और you can derive its equation in your copy, so that for better understanding, for clear understanding. Now we'll move forward to our next slide. इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इफिशिएंट सर्कुलर चैनल। जो सर्कुलर चैनल है वो उसमें मोस्ट इफिशिएंट कैसे होता है। मान लीजिए कि इस केस में पानी आपका यहाँ तक था, ये फुली, इसकी पूरी डायमीटर जो ये थी, और जो पानी जहाँ तक था उसको हमने d से डिनोट किया, इसकी फुल डायमीटर ये स्मॉल d है। अब मान लीजिए पानी यहाँ पे है, यहाँ तक पानी अगर इस केस में था तो आप देखिए कि इस केस में पानी था। अब ये यहाँ पे कुछ इन्होंने एंगल को दिखाया है, ये मान लीजिए ये जो एंगल है, ये एंगल इन्होंने बोला है कि 2 भाग में इनको बांट दिया, ये है अल्फा, आधा ये अल्फा और ये आधा ये अल्फा, मतलब ये टोटल एंगल मान लीजिए ये था, उन्होंने बोला कि ये था 2 अल्फा, ठीक है। और ये डेप्थ ऑफ वाटर कितना था, d था, और ये टोटल डायमीटर कितना था, या फुल डेप्थ कितना होता, स्मॉल d होता। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल में जो अल्फा की वैल्यू है फॉर मैक्सिमम फ्लो, मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्यू मैक्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो 154 डिग्री है। मतलब ये टोटल, ये वाला एंगल टोटल 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 308 डिग्री के आसपास। मतलब जब अल्फा की वैल्यू 154 डिग्री हो जाती है, मतलब ये टोटल वैल्यू 308 डिग्री हो जाता है, तो आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कितना हो जाता है, 0.95 डी। तो इस केस में आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि एट द डेप्थ d इज इक्वल टू 0.95 d देयर विल बी मैक्सिमम डिस्चार्ज, मतलब इस पर मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा फ्रॉम दिस पॉइंट। और दूसरा सेक्शन है कि फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, ये जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है और मैक्सिमम वेलोसिटी, ये दोनों या तो चेजिस मेनिंग किसी एक इक्वेशन को यूज करके ये निकाला गया है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 128.75 डिग्री होगा, ये अल्फा का वैल्यू। तो ये 2 अल्फा का कितना वैल्यू होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू कितनी होती है, पानी की डेप्थ की वैल्यू 0.81 इंटू टोटल उसका डायमीटर। तो आपको यही चीज याद रखना, ये दोनों चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जाम में भी बहुत आता है कि फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज
the depth of water should be 0.95 of the hole diameter, and for the maximum velocity the depth should be 0.81 d of the maximum diameter or the maximum depth. So this was the basic of economical channel, and this was the basic of the module 2, in which we completed all the basic equations such as Chagy's meaning. We also seen numerical, basic numerical on Chagy's meaning, and we also saw efficient channel section. Now one module is still left, in which we will see the Froude number, the application of Froude number, as well as the different type of flow in the terms of critical, subcritical and supercritical nature. Till that, you keep revising, it is important, you have to understand. I'll also put some of the numerical as a set, and you have to complete those numerical and post in the group or in the Google class. Very soon we'll meet for the next video. Thank you very much.